Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Uh, wish you a very good afternoon. Hope you are all doing well in your studies at your home and you are enjoying your lives. I would like to urge you to keep studying your books as far as possible. Whatever the situation you are in, you are supposed to keep a good relationship with your books. And we have already finished dealing with your chapter number 6, that's the regimental minor. Now I'm going to deal with the poem you have been given, and it has been written by William Shakespeare. He is one of the famous writers of all time. Let's get started with the poem itself. Friends and flatterers. Take it. Friends means a person who always trusts you and who always regards you affectionately, who is always cautious about you in sincerely in all matters. This personality is called a friend, who always keeps you in his considerations. He never forgets about you. And the other one is the flatterers, someone who is a false praiser, insincere praise. Someone who does is called a flatterer, and or in Urdu it's called khushamat karne wala. But friends, so many people are talking about friends, as one of the sayings of the first infallible Imam also tells us about friends, who is a friend, and he starts speaking about friends in this way, that the one of the wretched or the poor persons in the world is someone who doesn't have a true friend. एक सच्चा दोस्त जिसके पास नहीं हो वो सबसे बेचारा है, कहते हैं इमाम. well, हम सोचें, ठीक है, what do you mean by friends? Now, as you have also heard, how could a person be the poor or wretched if he doesn't have a sincere friend? Because you also have heard about this someone, I don't know exactly the authentication, but as you have heard in Urdu that दोस्ती करना मिट्टी पर मिट्टी से मिट्टी लिखना है. मिट्टी को उठाकर कोई ज़मीन पर फिर से मिट्टी लिखे तो बड़ी आसानी से लिख लेता है, बट दोस्ती निभाना, ठीक है, टू मेंटेन द फ्रेंडशिप एंड कीप गोइंग ऑन विद योर फ्रेंड्स इज़ क्या है, पानी पर पानी से पानी लिखना है. राइटिंग वाटर ऑन वाटर विथ वाटर. Is it possible? I have asked this question to so many students in our classes as well. Some of the students came back with the reply that it is not possible to write water on water with water. But it is possible. If you just think for a moment, if I have to write water on water with water, I have to go on 0 degrees Celsius. Now, how hard it is, how difficult it is. This is what it symbolizes. To keep going on with your friends and maintaining your friendship is so hard. तो दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है. Although cross gender यानी cross gender means boys girls relationships or the friendship is not allowed in Islam, still you have the friends, boys and boys and girls, so that's not a matter of concern. You can have friends with your friendship with your classmates. It means boys and boys, girls and girls. So let's get started with the poem. Who can be your best friend, who can be a flatterer? Let's try to know what he has written in this poem. Everyone, now let's get started. Everyone that flatters thee. Everyone is a third person singular. Why it is singular? Because we have already been told about this, that everyone is an indefinite pronoun, because it does not specifically point out who is or what thing we are talking about. तो everyone that यानी हर कोई जो flatters you. Now अब इसको singular मानते हैं तो वो plus s लगाए. flatters आपकी झूठी तारीफ करता है. दी ओल्ड इंग्लिश वर्ड होता है यू. अगर आपको कोई बेजा तारीफ करता है, इस नो फ्रेंड इन माइजरी. माइजरी मतलब बुरे वक्त में. You can write in English as well. You have been given the words meanings over here. When you are in a bad or difficult situation, he is not the one who could be a friend. Who? The flatterers, who falsely praise you. आपकी झूठी तारीफें करता है. Words are easy like the wind. अल्फाज जो है पेश करना बहुत आसान है हवा की तरह. Like the wind, जैसे कि हवा की तरह चलना है.
फेथफुल फ्रेंड्स आर हार्ड टू फाइंड, जो भरोसेमंद दोस्त हैं, सच्चे दोस्त हैं, वो ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है। एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, हर आदमी आपका फ्रेंड हो सकता है। वाइल्स दो हैज़ वेयर विथ टू स्पेंड, अब देखो यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश यूज़ किया, वाइल का मतलब विल्स का मतलब वाइल, दो मतलब यू आपको बताया, हैज़ मतलब हैव है ना, हैव, वाइल यू हैव मनी टू स्पेंड है, वेयर विथ वे टू स्पेंड, वाइल यू हैव द मनी टू स्पेंड, एवरी मैन विल बी दाई फ्रेंड, यूर फ्रेंड, आपका पैसे, जब आपके पास पैसे हों तो अब आपका दोस्त होता है, कुछ इस तरह के लोग मिल जाते हैं। बट इफ़ स्टोर ऑफ क्राउन्स बी स्कैंट, अब स्टोर ऑफ क्राउन्स क्या होता है, ये फ्रेज यूज़ किया है, यूनिट ऑफ मनी, ठीक है, आपके पास पैसे जो है वो कम हो जाए। बी स्कैंड, स्कैंड मतलब नॉट इनफ, स्कैंटीजेशन मतलब वेयर देयर इज वेरी देयर इज अ डेर्थ या देयर इज अ लेक ऑफ मनी, तो किसी चीज़ की कमी हो तो उसको स्कैंटी कहते हैं। तो स्कैंड हो तो कम हो तो क्या होता है, जब यूनिट्स ऑफ मनी कम हो तो नो मैन शल सप्लाई दाई वांट, दाई होता है यूर, ती दो यू और दाई होता है यूर, या ओल्ड या आर्कैइक इंग्लिश कहलाता है। नो मीन शेल सप्लाई, कोई आपको नहीं देगा, क्या नहीं देगा, शेल सप्लाई दाई वांट, वांट यहाँ पे नीड है, कोई भी आपकी ज़रूरत को पूरा करने वाला नहीं होता है। अब आगे देखो, इफ़ देट वन बी प्रोडिगल, प्रोडिगल होता है यानी बड़ा खर्चीला, फजूल खर्ची करने वाला, जो स्पेंड मनी फ्रीली, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता हो, अगर वो ऐसा आदमी हो या जो आदमी सामने बैठा होता है, इफ़ देट वन बी प्रोडिगल बाउंटीफुल दे विल हिम कॉल, दे विल हिम कॉल। अब बाउंटीफुल क्या होता है, जनरस, सखी, सखावत जैसी, दूसरों को सब कुछ देने वाला, उसको सखी कहते हैं। तो बाउंटीफुल होगा दे विल हिम कॉल, वो उसको क्या कहते हैं, जब वो ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला हो, उसके पास पैसे हों, तब उसको कहते हैं कि ये बहुत सखी है, ठीक है। एंड विथ सच लाइक फ्लैटरिंग्स, और कुछ इस तरह की, ठीक है, इस जैसे फ्लैटरिंग करते हैं फॉल प्रेजेस के ज़रिए, कौन सी, पीटी अफसोस, बट ही वेर किंग, पर ले अब यहाँ पे पीटी अफसोस, काश, यहाँ पे बट का कैसा यूज़ किया है, काश, ही वेर किंग, काश वो एक राजा होता, इस तरह की वो उस पर क्या करते हैं, फ्लैटरी करते हैं, उसको मतलब उकसाते हैं, उसको झूठी तारीफ़ करते हैं। अगर वो आदमी सामने वाला खर्चा करने वाला, बहुत पैसे खर्च करने वाला हो, तो वो कहते हैं ही वेयर किंग। अब आपको ग्रामर में सिखाया तो ही के साथ तो वाज आता है सर, तो वेयर कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे जब भी हम इमेजिनेटिव या जब कोई नॉन रियल सिचुएशन के बारे में लिखते हैं, तब हम थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या किसी के साथ भी हो, आई वेयर भी करते हैं और ही वेयर भी करते हैं, सबके साथ वेयर यूज़ करते हैं जब हम इमेजिनेटिव कर रहे हैं। तो काश वो बादशाह होता, इसका मतलब वो बादशाह नहीं है और ये मुमकिन नहीं होता है, जो चीज़ उसके लिए यूज़ करते हैं, तो काश वो एक बादशाह होता। बट इफ़ फॉर्चून वंस डाउन डू फ्राउन, अब देखो, लेकिन किस्मत, फॉर्चून यहाँ पे लक, वंस डू फ्राउन, एक बार अगर डू फ्राउन, फ्राउन करता है, फ्राउन करता है क्या मतलब है, फ्राउन होता है गेस्चर, एक आपने सुना होगा पोस्चर, पोस्चर यानी बैठने का तरीका, उठने के तरीके को पोस्चर कहते हैं। गेस्चर होता है इशारा, या फिर जैसे कि आप सर हिलाते हैं किसी को, अगर आपसे कोई सवाल करते तो जवाब देने के बजाय कुछ लड़के सर हिलाते हैं, तो उसको नॉडिंग कहते हैं ना। तो इसी तरह फ्राउन क्या होता है, फ्राउन का असली मतलब होता है लुक एंग्री, ठीक है, जब कोई गुस्से में होता है। रिंकल्स वन, ठीक है, रिंकल्स वन फॉर हेड एज इफ टू सिग्नल डिसअप्रूवल, जैसे कि मतलब स्प्रल्बा जुबसे जम मचक हुई स्प्रल्बे के जो सुल छाशस, और गुस्से में ऐसे देखते हैं, उसको ये कहते हैं फ्रॉन। अब यहाँ पे क्या है, जब बट फॉर्चून वंस डू फ्रॉन का मतलब यहाँ पे नीचे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ़ द पर्सन बिगिनस टू लूज मनी, अब उसका किस्मत अगर उससे रूठ जाए, यानी किस्मत उस पर पैसा जो है उससे ख़त्म होना शुरू हो जाए, वो उसकी तरफ मतलब डिसअप्रूवल करे, उसके साथ ना रहे, पैसा उसके साथ ना बचे, तो क्या हो जाता है, देन फेयरवेल हिज ग्रेट रिनाउन, फिर अलविदा हो जाता है उसकी जो बड़ी शोहरत है, या ग्रेट यानी बड़ी और रिनाउन यानी शोहरत, जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, हिज पॉपुलैरिटी गोज डाउन, उसकी जो शोहरत थी वो ख़त्म हो जाती है उन लोगों के लिए जो उसको बड़ा झूठी तारीफ़ करते थे, काश वो बादशाह होता, ये होता, कहते थे। देन अच्छा यहाँ पे दे देट फाउंड, अब ये फाउंड से नहीं है, ये फाउंड है, हु दे देट यहाँ पे हु है, जो लोग क्या करते थे, फाउंड ऑन हिम बिफोर, फाउंड ऑन हिम बिफोर यानी उसका क्या मतलब है, ये पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, हु हैड बीन प्रेजिंग हिम अर्लियर, जो उनकी बड़ी, उसकी पहले बड़ी तारीफ़ करते थे, यूज़ हिज कंपनी नो मोर, अब उसके साथ और ज़्यादा नहीं बैठते हैं, जो जशिन फेयर वेदर फ्रेंड्स, ठीक है, फेयर वेदर फ्रेंड्स जशिन जय जशिन
यानी जो मौसम अच्छा हो तो आपके दोस्त, नहीं तो आपके